Welcome to lecture 21 of HRM lecture series. In continuation with our previous lectures, today we will talk about methods of performance appraisal. So let's start learning. Methods of performance appraisal can be divided into two categories. One is traditional methods of performance appraisal and the other one is modern methods of performance appraisal. We'll be talking about them one by one. Under the traditional category, we have the first method is confidential report, also known as CR. Second is ranking. Third, forced distribution. Fourth is graphic rating, then checklists. Next is critical incidents or management by exceptions, also known as MBE. Next, essay or narrative forms, and the last one is group or panel appraisal. So these are various methods which are categorized under traditional category. Then modern methods of performance appraisal. First is management by objectives, MBO. Second is behaviorally anchored rating scales. Acronym is BARS, BARS. Then 360-degree appraisal, computerized and web-based appraisal, and last is mixing the methods. So we say that no single method, no single appraisal method is best in all kinds of situations or all kinds of works or all kinds of workers. So therefore, a performance measurement system that uses a combination of these in any proportion, a combination of these methods seems sensible in most of the circumstances, and using combinations may offset some of the disadvantages of each individual method. So it is advisable to use a combination of these performance appraisal methods if we want to evaluate the performance of the worker correctly. Okay, now let us talk about these methods one by one. The first one is confidential report. It is prepared by immediate boss and it covers a limited range of aspects like strengths, weaknesses, major failures and achievements of the worker. तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो बहुत बेसिक टाइप का परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड है, काफ़ी पुराना है और नॉर्मली जो वर्कर का इमीडिएट बॉस होता है, इमीडिएट सुपीरियर होता है, वो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट में बहुत लिमिटेड चीज़ों के बारे में बात होती है. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेंथ्स ऑफ द वर्कर, वीकनेसेस ऑफ the worker, the major failures during the period for which we are making this performance appraisal or the major achievements in that particular period. Okay. Next is ranking. Next traditional method is ranking. As the name suggests, यहाँ पर performance को rank किया जाता है. Performance of different workers is ranked. This is the oldest and simplest method. ऑर्डर में लगाया जा रहा है और हर वर्कर के नाम का एक कार्ड बना लिया. सो सपोज देयर आर 10 वर्कर्स, द इवैल्यूएटर हैज 10 कार्ड्स with him or her और हर एक पर एक एक वर्कर का नाम लिखा हुआ है. Now these cards are arranged in order from low to high. तो जिसकी सबसे खराब परफॉर्मेंस है उसका कार्ड, उसके नाम का कार्ड सबसे नीचे, फिर जो उससे बेटर है वो उससे ऊपर एंड सो ऑन. तो ये एक ऑर्डर में रैंक कर दिए जाते हैं और ऑर्डर है फ्रॉम लो टू हाई. तो सबसे पहले जिसकी सबसे पुअर परफॉर्मेंस है उसके नाम का कार्ड और धीरे 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 टॉप पर किसका कार्ड होगा, सबसे ऊपर किसका कार्ड होगा, जिसकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ ऑल सबसे अच्छी है. ठीक है. वर्कर्स आर कंपेयर्ड. अब कैसे कंपैरिजन हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी. तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑनेस्टी को अप्रेज करना चाह रहे हैं और ऑनेस्टी को मेजर करना चाह रहे हैं और 10 वर्कर्स हैं तो 10 के नाम के कार्ड्स हमारे पास हैं और कौन कितना ऑनेस्ट है इस बेस पर हम उन कार्ड्स को अरेंज करते हैं. ठीक है. तो ये ऑनेस्टी का मेजरमेंट हो गया वर्कर की. सिमिलरली अगर सिंसियरिटी मेजर करना चाह रहे हैं, अगेन वी विल हैव अ सेपरेट रैंकिंग. जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है वो सबसे ज्यादा सिंसियर भी हो. तो वी विल हैव अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ
these cards in this particular category जहां हम सिंसियरिटी मेजर कर रहे हैं। तो A B C D E F जितने भी वर्कर्स हमारे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनके नाम आ जाएंगे जब हम ऑनेस्टी मेजर कर रहे हैं, दूसरे ऑर्डर में नाम आ जाएंगे जब हम सिंसियरिटी मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली वी कैन मेजर आउट ऑफ ऑल हु इज मोस्ट हार्ड वर्किंग, तो जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है उसका कार्ड सबसे ऊपर होगा और जो सबसे कम हार्ड वर्क करता है उस वर्कर का कार्ड सबसे नीचे होगा, एंड इन बिटवीन ऑल अदर वर्कर्स कार्ड्स विल बी देयर। तो ये सिंपल रैंकिंग है, बहुत आसान सा और सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का। लेकिन इस मेथड के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन क्या है कि ये मेथड वहीं सूटेबल है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल हो, थोड़े से ही वर्कर्स काम करते हो। तो अभी जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 10 वर्कर्स हैं तो हम उनके कार्ड्स को अरेंज कर देते हैं लो टू हाई। लेकिन अगर मान लीजिए 500 वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो इस तरह के कार्ड्स अरेंज करना ही मुश्किल है और उसके बाद उसे इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल है ना। तो 500 कार्ड्स को आप एक ऑर्डर में लगा रहे हैं और फिर ये देखना कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है, क्योंकि एक लिमिटेशन इस मेथड की ये भी है कि ये मेथड ये तो बता देता है कि हु इज बेटर, क्योंकि एक ऑर्डर में हमने रैंक कर दिया तो जिसका कार्ड ऊपर है वो नीचे वाले से बेटर है, बट बाय हाउ मच ये तो नहीं पता चल रहा है, और क्यों ऐसा है ये भी हमें नहीं पता चल रहा है। तो दिस इज अ सिंपल रैंकिंग मेथड, इट वर्क्स वेल इन स्मॉल organizations and where these kinds of attributes are to be measured, honesty, sincerity, hard work, like that। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता है कि क्यों दूसरा ज्यादा अच्छा है और कितना ज्यादा अच्छा है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। Now let us talk about next method, this is forced distribution। Forced distribution is a method which was propounded or developed by Joseph Tiffin। HR प्रोफेशनल जोसेफ टिफिन ने, एचआर थिंकर जोसेफ टिफिन ने इस मेथड को डेवलप किया और उनके हिसाब से टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर टू type of scales must be used, and he said that it is possible and desirable to rate the performance of each worker on only 2 factors। तो ये 2 factors क्या हैं एज पर जोसेफ टिफिन, एक है जॉब परफॉर्मेंस और दूसरा है प्रोमोटेबिलिटी। ठीक है, प्रमोशन। अब हम देखें जॉब परफॉर्मेंस में जोसेफ टिफिन ने क्या कहा। फॉर जॉब परफॉर्मेंस जोसेफ टिफिन यूज्ड 5 पॉइंट स्केल्स, एक 5 पॉइंट स्केल यूज किया। 5 पॉइंट स्केल का मतलब हमें समझ आता है कि जहां पर 5 लेवल्स पर हम मेजर कर पा रहे हो परफॉर्मेंस। रेटर्स जो इवैल्यूएटर्स हैं, दे प्लेस ratees, that is workers, in one of the 5 brackets as follows। 5 ब्रैकेट्स हमें नजर आ रहे हैं और हमें एक ये नॉर्मल कर्व नजर आ रहा है, बेल शेप्ड कर्व। नॉर्मल कर्व का मतलब होता है जिसे हम ये मानते हैं कि पॉपुलेशन जो है, जो एंटायर पॉपुलेशन हमारी है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंटायर वर्किंग पॉपुलेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इज as far as job performance is concerned can be divided in 5 categories। ठीक है, और ये जो 5 कैटेगरीज हैं ये बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व है जिसमें हमें समझ आ रहा है कि 10% वर्कर्स ऐसे होते हैं आउट ऑफ ऑल जो बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 10% ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 20% वर्कर्स परफॉर्म बिटवीन गुड एंड एक्सीलेंट, 20% workers perform between poor and below average, and rest 40% of the workers work between the category below average and good। यानी mostly on an average normally workers perform okay। ओके जब हम कह रहे हैं यानी बिलो एवरेज और गुड के बीच में ज्यादातर वर्कर्स परफॉर्म करते हैं। सिर्फ बहुत थोड़े से वर्कर्स हैं जो बहुत खराब परफॉर्म करते हैं, बहुत थोड़े से वर्कर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। थोड़े वर्कर इनसे थोड़े ज्यादा ऐसे वर्कर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बहुत खराब परफॉर्म करते हैं, ये खराब परफॉर्म करते हैं, और ज्यादातर वर्कर्स ऑन एन एवरेज ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये 5 ब्रैकेट्स में हम किसी भी वर्कर को प्लेस कर सकते हैं, या तो वो इस कैटेगरी में होगा, या यहाँ या यहाँ या यहाँ, या लास्ट बेस्ट वर्कर, एक्सीलेंट। ठीक है,
ये तो था एक स्केल जो जोसेफ टिफिन ने बताया कि जॉब परफॉर्मेंस को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, जोसेफ टिफिन के हिसाब से हम प्रमोशन को दूसरा क्राइटेरिया बनाएं व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर वर्कर्स, एंड इन केस ऑफ प्रमोशंस हम एक 3 स्टेप का स्केल बनाएं, 3 स्टेप प्रोमोटेबिलिटी स्केल, जहां पर एक एक्सट्रीम बताती है ऐसे वर्कर्स वेरी लाइकली टू बी प्रमोशनल मटेरियल, यानी ऐसे वर्कर्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें ये एबिलिटी है कि उन्हें प्रमोट किया जाए और वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाए। दूसरी एक्सट्रीम है जहां पर हमें वो वर्कर्स नजर आ रहे हैं विच आर वेरी अनलाइकली टू बी प्रमोशनल मटेरियल, यानी ये ऐसे वर्कर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, और ये जहां पर हैं या तो वहीं पर ही काम करें या फिर उन्हें डिमोट किया जा सकता है। ठीक है, इन बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स, इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में हमें ऐसे वर्कर्स नजर आते हैं विच मे और मे नॉट बी प्रमोशनल मटेरियल, यानी अगर बहुत जरूरी है प्रमोशन के लिए, आपको वर्कर्स आप ढूंढ रहे हैं और बहुत जरूरी है, तो आप इस तरह के वर्कर्स को पिक कर सकते हैं। या अगर आपको प्रमोशन नहीं करनी है तो दे कैन स्टे वेयर दे आर। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हमें नजर आई। एक एक्सट्रीम कि जैसे ही आपके पास कोई वैकेंसी आए, जैसे ही आपको मौका मिले, इस कैटेगरी के वर्कर्स को इमीडिएटली प्रमोट कीजिए। जैसे ही आपको मौका मिले, नौकरी से हटाने की जरूरत पड़े, तो इस कैटेगरी के वर्कर्स को डेफिनेटली निकाल दीजिए। एंड दीज आर दी वर्कर्स जो आपके पास रहेंगे, आपके पास काम करते रहेंगे, बिकॉज दे आर सैटिस्फैक्टरी वर्कर्स, और अगर बहुत जरूरत पड़े तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया, ये स्केल्स, 2 स्केल्स बनाए जोसेफ टिफिन ने और इसको नाम दिया गया फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मेथड जो है, दैट इज ग्राफिक रेटिंग। ग्राफिक रेटिंग में वैसा ही है जैसे अभी हम रैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, ये भी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि जो आसान चीजें होती हैं वो पॉपुलर भी होती हैं। तो ये मेथड में क्या किया जाता है, 5 पॉइंट लीनियर स्केल बनाया। 5 पॉइंट में 5 अलग अलग कैटेगरीज, एक एक्सट्रीम एक्सीलेंट, एक एक्सट्रीम वेरी पुअर, इन बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स वी हैव 3 मोर कैटेगरीज, गुड, एवरेज, पुअर। ठीक है, एंड ये जो अप्रेज करनी है, हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, उसके कुछ बेसिस हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड डिपेंडेबिलिटी। देखिए क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क की जब हम बात कर रहे हैं कि वो वर्कर काम जो करता है वो काम की क्वालिटी कैसी होती है, यानी वो अच्छा काम करता है या सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देता है, यानी ज्यादा से ज्यादा काम करना, बट ही और शी डज नॉट केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी के लिए इतने पर्टिकुलर होते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो काम ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो वो जब तक काम बिल्कुल ठीक ना हो जाए उसी एक काम को करते रहते हैं, इन द प्रोसेस क्वांटिटी जो है वो सफर करती है। तो हमें ऐसे वर्कर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करें, ऐसे वर्कर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करें, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में द वर्कर्स मे नॉट बी डिपेंडेबल। जब आपको उनसे काम कराना होगा और अच्छा काम कराना होगा, तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करते हैं वो काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा काम करेंगे, जो क्वांटिटी ऑफ वर्क पे फोकस करते हैं वो काम तो ज्यादा कर देंगे लेकिन अच्छा काम नहीं करेंगे। तो हमें 3 क्राइटेरिया यहाँ पर बना लिए, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड dependability. Can these workers be reliable? Can we rely on them? Are they reliable? इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम जो स्केल बना रहे हैं, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें क्वालिटी ऑफ वर्क मेजर करना है तो क्वालिटी ऑफ वर्क में हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं। अलग अलग, मतलब बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें हम क्वालिटी को मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेसी, कि क्या वर्कर की परफॉर्मेंस एक्यूरेट है। और जब हम एक्यूरेसी मेजर करें तो एक्यूरेसी मेजर करने में हमारे पास 5 पॉइंट स्केल आ गया। ठीक है, किसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है उसको हम एक्सीलेंट बोलेंगे, इफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस इज वेरी एक्यूरेट। गुड हम बोलेंगे कि बहुत एक्यूरेट तो नहीं लेकिन एक्यूरेट होती है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज एक्यूरेट। एवरेज, जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन
ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, तो वो एक्यूरेट हो गया, एवरेज हो गया। पुअर हुज परफॉर्मेंस इज नॉट एक्यूरेट, यानी ज्यादातर उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है, ज्यादातर उसकी परफॉर्मेंस गलत होती है। एंड वेरी पुअर, नेवर एक्यूरेट, जिसकी परफॉर्मेंस कभी भी एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये 5 हमारे पास लीनियर 5 पॉइंट स्केल है जिसमें हम एक्यूरेसी मेजर कर रहे हैं टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, इसी तरह से हम नीटनेस मेजर कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क में हम नीटनेस पर फोकस कर सकते हैं, और जब हम नीटनेस के लिए स्केल बनाएं तो स्केल तो यही 5 पॉइंट स्केल होगा, पर एक्सीलेंट में हम किसको लाएंगे, जिसका काम बहुत नीट होता है। फिर गुड में हम किसको लाएंगे, जिसका काम नीट होता है। एवरेज में किसको लाएंगे, जिसका काम नीट होता है बट समटाइम्स डेविएट्स फ्रॉम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि वैसे तो ठीक ठाक है, एक्यूरेट है, पर कभी कभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। पुअर किसका होगा नीटनेस जब हम मेजर कर रहे हैं, जिसका काम अनटाइडी होता है, जो काम ही गंदा करता है। ठीक है, और वेरी पुअर किसका होगा, जिसका काम वेरी अनटाइडी होता है। तो हम इस स्केल पर हर वर्कर की परफॉर्मेंस को प्लेस करते हैं ताकि हम फाइनली देख पाएं कि क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। तो ये 2 चीजें तो मैंने बताई कि एक्यूरेसी सपोज मेजर करनी है तो 5 पॉइंट स्केल पे ऐसे करें, नीटनेस मेजर करनी है तो ऐसे करें। सिमिलरली वी कैन मेजर क्वालिटी कॉन्शियसनेस, कि वो कितना कॉन्शियस है टुवर्ड्स दी क्वालिटी, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कितना ध्यान देता है, कितना फोकस्ड है, इन चीजों के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो ग्राफिक रेटिंग में अगर हमें क्वालिटी ऑफ वर्क को रेट करना हो तो 5 पॉइंट स्केल पर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वर्क या डिपेंडेबिलिटी के भी इसी तरह के स्केल हम बना सकते हैं। दिस इज ओनली एन एग्जांपल ऑफ मेजरिंग क्वालिटी ऑफ वर्क। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड दिस मेथड इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट नाम से समझ आ रहा है कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर हम वर्कर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, और हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि जहां जहां वो ठीक काम कर रहा है, जिस जिस क्राइटेरिया पर वो सही उतर रहा है, वहां हम टिक लगाते हैं या यस लिखते हैं, और जिस क्राइटेरिया पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वहां या तो क्रॉस करते हैं या तो नो लिखते हैं। तो अ चेकलिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द ट्रेट्स क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉइज इज प्रिपेयर्ड विद 2 कॉलम्स। वो दोनों कॉलम्स, एक यस कॉलम और एक नो कॉलम। ऑल दैट द इवैल्यूएटर शुड डू, इवैल्यूएटर क्या करे कि उन कॉलम्स को टिक करे जहां यस, जो जो कामों के लिए वो ठीक कर रहा है वो यस करते रहे, एंड आंसर टू द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, और उन्हें नो में टिक करे जहां पर आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी जो हम मेजर करना चाह रहे हैं अगर वो सही नहीं कर रहा है तो हम नो को टिक करें, और अगर वो सही कर रहा है तो हम यस को टिक करें। दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, मोस्टली हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं ज्यादातर सिंपल हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगा, एंड दैट वाज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो जोसेफ टिफिन ने डिजाइन किया। नाउ लेट अस मूव टू मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जब हम एमबीओ की बात करते हैं तो नाम से कभी शायद आपने ये थोड़ा पढ़ा भी है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में जब हम गोल्स को ध्यान में रखकर सारा काम करते हैं, वैसे तो हमेशा मैनेजमेंट में किया ही ये जाता है कि सबसे पहले गोल सेट किए जाते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, वो सारा उसके बाद करते हैं। तो एमबीओ है क्या? It is a comprehensive and formal organization-wide goal setting and appraisal program. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल क्या है उसको ध्यान में रख के जब हम अप्रेजल प्रोग्राम बनाएं तो वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, और इसमें 6 स्टेप्स आते हैं, प्रोसेस है, तो इट हैज गॉट 6 स्टेप्स। सबसे पहले सेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल सबसे पहले पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो सेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी, सपोज द प्लान इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स इन द कमिंग ईयर बाय 20%,
ठीक है। तो अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है तो अब हम क्या करें, वी सेट डिपार्टमेंटल गोल्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो अब हर डिपार्टमेंट का गोल सेट करना है कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो superiors and department heads jointly set goals for each department, और जब हर डिपार्टमेंट अपने अपने गोल्स अचीव करेगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे, ये माना जा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस डिपार्टमेंटल गोल्स। सुपीरियर्स ने या डिपार्टमेंट हेड्स ने डिपार्टमेंट के गोल्स तो सेट कर दिए, लेकिन काम किसको करना है, काम तो सबऑर्डिनेट्स को करना है। तो जो गोल सुपीरियर्स ने या डिपार्टमेंट हेड्स ने सेट किए, अब उन्हें डिस्कस कीजिए डिपार्टमेंट में विद ऑल द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबके साथ डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए कि हमारे डिपार्टमेंट का ये टारगेट है इस साल का, एंड आस्क देम हाउ ईच कैन कंट्रीब्यूट टू डिपार्टमेंटल गोल्स, कि हर वर्कर अपनी तरफ से क्या काम करेगा, कितना काम करेगा कि डिपार्टमेंट अपना गोल अचीव कर पाए। और जब सारे डिपार्टमेंट इस तरह से करेंगे और सारे डिपार्टमेंट अपने गोल अचीव कर लेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, राइट। लेकिन इसमें देखिए बार बार हम गोल्स को ध्यान में रख रहे हैं, है ना, इसीलिए ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स एक ही बात है। नेक्स्ट, डिफाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अब जब ये बता दिया गया, डिपार्टमेंटल गोल सबऑर्डिनेट के साथ डिस्कस हो गए और हर सबऑर्डिनेट से पूछा गया कि वो इस डिपार्टमेंटल गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप आया कि हेड एंड सबऑर्डिनेट्स बोथ सेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स। अब हर वर्कर के लिए एक टारगेट, हर वर्कर के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए, टारगेट फिक्स कर दिए गए, ताकि गोल को अचीव कर पाए, ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाए। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू। अब क्योंकि हर वर्कर के पास उसके टारगेट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, क्या काम करना है उसे, तो अब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेटेड परफॉर्मेंस, हर वर्कर की एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेटेड परफॉर्मेंस को कंपेयर करे, और जब कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद, यानी यही इवैल्यूएशन है, कंपेयर करने के बाद उनको फीडबैक दे। अगर तो टारगेट मीट आउट हो गए हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेटेड परफॉर्मेंस सेम है, तो उनको अप्रिशिएट करें, इंसेंटिव्स दें। और अगर वो लैक कर रहे हैं, इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द टारगेटेड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो डिस्कस करें कि क्यों ऐसा हो गया, कहाँ कमी है, क्या प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रहे हैं वो, और क्या हेड करे ताकि वर्कर इजीली काम कर सके, और क्या वर्कर करे कि वो अपने टारगेट्स पूरा कर सके, तो वो डिस्कस करना और प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना। तो उसके बाद प्रोग्रेस, क्योंकि ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एमबीओ जो है वो भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, सिर्फ एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना होने वाला काम नहीं है, ये रेगुलरली चलने वाला काम है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, दिस इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसेट टारगेट्स, प्रीसेट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किया, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और काम को इवैल्यूएट कर रहे हैं। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीओ का, ये लग तो बहुत सिस्टमैटिक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम एमबीओ को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सेटिंग अनक्लियर और अनमेजरेबल गोल्स। अगर ऐसा होता है कि जो गोल सेट किए गए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल या डिपार्टमेंटल गोल्स, अगर वो अनक्लियर हैं, एम्बिग्विटी है, यानी समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, या गोल तो हैं, समझ तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मेजर नहीं किया जा रहा है, तो जब तक हम मेजर नहीं कर पाएंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैंने काम किया अपनी तरफ से, लेकिन वो ठीक था कि नहीं, वो उतना ही था कि नहीं जितना चाहिए था। तो अगर गोल अनमेजरेबल है या गोल अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, तो एमबीओ जो तरीका है परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का वो फ्लॉप हो जाता है, वो काम नहीं करता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। दूसरी बात, हमने देखा कि इसमें 6 स्टेप्स हैं, काफी लंबा चौड़ा है, तो बेसिकली दिस मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। MBO as a method of performance appraisal is a time consuming method, obviously दिख रहा है हमें। And lastly, it may result into tug of war। tug of war समझ आता है, जब हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी थोपने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने गोल सेट कर दिए और हर सबऑर्डिनेट के पास उसके इंडिविजुअल टारगेट आ गए,
ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल के टारगेट मीट आउट नहीं होते हैं तो वो कह सकता है कि भाई माई अदर कलीग डिडंट लेट मी वर्क, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ माई अदर कोलीग जिसने मेरे को ये काम नहीं करने दिया या मेरा काम खराब कर दिया, ठीक है। दिस इज ब्लेम गेम, टग ऑफ वॉर, जब हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दें। इसी तरह से अगर कोई डिपार्टमेंट अपना टारगेट मीट नहीं कर पाता है तो ये हो सकता है कि वो बोलें कि अरे भाई दूसरे डिपार्टमेंट की वजह से हम काम अपना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपना काम टाइम पे नहीं किया इसलिए हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। तो ये टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है या ब्लेम गेम शुरू हो जाता है इन एमबीओ, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर बहुत इंटरट्विन्ड है सबकी परफॉर्मेंस। इतना कॉम्प्लेक्स तरीका है ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का कि एक की परफॉर्मेंस से दूसरे की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, तो इट मे लीड टू टग ऑफ वॉर और ब्लेम गेम। ये एक इसकी डिसएडवांटेज है एमबीओ की। नाउ द नेक्स्ट मेथड, अगेन दिस इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द नेम ऑफ द मेथड इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, और इसका एक्रोनिम बनाया गया BARS, बार्स। ये है क्या? This method assesses an employee's behavior rather than other characteristics, यानी यहाँ फोकस सारा का सारा एम्प्लॉय के बिहेवियर पे है, और यही देखिए इसका नाम भी है, ठीक है। बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वर्कर के बिहेवियर पे ध्यान दिया जा रहा है इस मेथड में। एंड कंबाइंस द पॉजिटिव्स ऑफ नैरेटिव, critical incidents and graphic rating by anchoring a rating scale with specific behavioral examples of good or poor performance। देखिए ऐसा करते हैं, बार्स डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इसमें हमें ये समझ आया कि इसमें और बहुत सारे मेथड्स को यूज किया गया है, उनको कंबाइन किया गया है। तो इसमें से ग्राफिक रेटिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्रिटिकल इंसिडेंट्स MBE और नैरेटिव वाला अभी हमने नहीं किया। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दीज, हम समझ लें कि ये मेथड्स क्या हैं ताकि फिर हम बार्स के बारे में अच्छे से समझ पाएं। यस प्लीज। CR हो गया, रैंकिंग हो गया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिक रेटिंग हो गया, चेकलिस्ट हो गया। हाँ, अब ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस है MBE, इसको हम समझें कि यहाँ पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हुए फोकस इवैल्यूएटर का जो सुपीरियर है, जो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है, उसका फोकस ओवरऑल परफॉर्मेंस पे नहीं होता है वर्कर की। ही और शी पिक्स only critical incidents during the year, जबकि हम परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हैं, उस साल में ऐसी क्या खास बात हुई जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, और उस खास इंसिडेंट में, उस क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इंसिडेंट में वर्कर का क्या रिएक्शन था, वर्कर ने कैसे बिहेव किया, वर्कर ने कैसे परफॉर्म किया, उस पर ध्यान देना। यानी रूटीन मैटर्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं MBE में या क्रिटिकल इंसिडेंट्स में। द फोकस इज ऑन स्पेशल इवेंट, ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ऑन इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स, कि जब कोई इंपॉर्टेंट बात हुई, जब कोई बहुत डिफरेंट बात हुई, एक्सेप्शनल केस आया, तब वर्कर ने उसे कैसे हैंडल किया, इस चीज पर फोकस होता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि इवैल्यूएटर के टाइम एनर्जी सेव होता है, और ध्यान ये दिया जाता है कि रूटीन काम तो सारे वर्कर कर ही लेते हैं, तो रूटीन के अलावा, रूटीन से हटके जब कोई खास सिचुएशन आई, कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आई, तब वर्कर ने कैसे उसे हैंडल किया, उस पर जब फोकस होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट्स और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। यानी परफॉर्मेंस को सिर्फ क्रिटिकल इंसिडेंट्स के बेस पर अप्रेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसे और नैरेटिव फॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि इवैल्यूएटर जो है वो परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस को अप्रेज सिर्फ चेकलिस्ट की तरह या रैंकिंग की तरह नहीं कर रहा है, बल्कि डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है अपनी। जब ऐसे फॉर्म में लिखकर बताता है कि वर्कर की परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर कैसी रही, तो उसमें हर चीज के बारे में डिटेल में मेंशन करता है, तो वह ऐसे या नैरेटिव फॉर्म में
परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो ये हुआ। और लास्ट जो है ग्रुप या पैनल अप्रेजल, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, उसको पैनल भी बोलते हैं। तो अगर वो इवेल्युएट करें परफॉर्मेंस को तो दैट इज ग्रुप और पैनल अप्रेजल। ठीक है, इसके साथ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स का डिस्कशन पूरा हो गया। एमबीओ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम बार्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम बार्स में देखें कि क्या है बार्स। ठीक है, तो पीछे इसलिए आना पड़ा क्योंकि बार्स इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स, जिसमें से एक नैरेटिव है, एक क्रिटिकल इंसिडेंट्स है, एक ग्राफिक रेटिंग है। ठीक है, तो बार्स में क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो कि फोकस सिर्फ बिहेवियर पर है rather than other characteristics of the worker. दूसरा, it includes all the positive sides or all the advantages of narrative form, critical incidents and graphic rating method. इसमें क्या जा रहा है, by anchoring a rating scale with specific behavioral examples of good or poor performance. एक rating scale बनाया जा रहा है और उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल, बिहेवियर रिलेटेड ऐसे एग्जाम्पल को मेजर किया जा रहा है कि वहां पर उस पता चले कि क्या परफॉर्मेंस गुड थी या पुअर थी। अब इसमें भी 5 स्टेप्स यूज हो रहे हैं, जरा देखें कैसे ये स्केल तैयार किया जा रहा है। नंबर 1, जेनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट। सबसे पहले तो हमने वो खास सिचुएशंस के को आइडेंटिफाई करना है जो पिछले साल में हुई हैं, जिन पर हम स्टडी करना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे परफॉर्म किया, कैसे उन्हें फेस किया, उन इम्पॉर्टेंट डिफरेंट सिचुएशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो लिस्ट बना रहे हैं। ये क्रिटिकल इंसिडेंट्स ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, बोथ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। ठीक है, अब तब खराब बिहेवियर भी हो सकता है वर्कर का, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हर तरह की सिचुएशन, हर तरह की क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सिचुएशन को यहाँ हम लिस्ट कर रहे हैं। और ये लिस्ट करने का काम कौन कर रहा है, वन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। इसका मतलब देयर कैन बी अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट्स, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने, कौन से एक्सपर्ट, जो परफॉर्मेंस को अप्रेज करने वाले हैं, तो देयर आर सम एक्सपर्ट्स हु आर एक्सपर्ट इन मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उस ग्रुप को ने क्या किया, क्रिटिकल इंसिडेंट्स की एक लिस्ट बनाई वो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पिछले साल में हुए जिसमें वर्कर का परफॉर्मेंस डिजायरेबल था या अनडिजायरेबल था, तो समथिंग एक्सेप्शनल दैट हैपेंड लास्ट ईयर, उनकी लिस्ट हमने बना ली बाय वन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। नाउ डेवलप, अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, डेवलप परफॉर्मेंस डायमेंशंस बाय अनदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो लिस्ट हमारे पास बनी बाय वन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, वी हैव अनदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उन्होंने इन क्रिटिकल इंसिडेंट्स को जो फर्स्ट ग्रुप ने बनाया उनको स्मॉलर क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया, तो उनको ग्रुप कर दिया। ठीक है ग्रुप कर दिया कि जो सिमिलर इंसिडेंट्स थे वो एक ग्रुप में डाल दिए, फिर जो दूसरे सिमिलर, आपस में सिमिलर स्टूडेंट इंसिडेंट्स थे उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, लाइक दैट। तो देखिए क्या हो रहा है, दे डेवलप परफॉर्मेंस डायमेंशंस एंड दिस इज डन बाय अनदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स एंड दे ग्रुप these incidents into smaller sets, और इन स्मॉलर सेट्स का नाम है जॉब डायमेंशंस। ठीक है, अलग अलग तरह की जॉब डायमेंशंस हमारे पास आ गई बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट्स। ठीक है, अब रीएलोकेट इंसिडेंट्स। अब एक और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है हमारे पास, another group of expert, थर्ड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, और इसने क्या किया कि ये जो परफॉर्मेंस डायमेंशंस बनाई थी ना सेकंड ग्रुप ने, अब इन परफॉर्मेंस डायमेंशंस में देखा कि जो जो इंसिडेंट्स इन्होंने डाले थे, एक ग्रुप में मान लीजिए 3 इंसिडेंट्स डाले थे, दूसरे ग्रुप में 4 इंसिडेंट्स डाले थे, तो ये थर्ड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, वो रीएलोकेट करता है इंसिडेंट्स को कि नहीं ये इस ग्रुप में नहीं दूसरे ग्रुप में जाना चाहिए, इससे ये जॉब डायमेंशन मेजर नहीं करनी है, दूसरी मेजर करनी है। ठीक है, तो दिस थर्ड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स रीएलोकेट इंसिडेंट्स, और ये कब उन्हें रखता है कब हटा देता है और कब रखता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स को, ये रिटेन करते हैं उन क्रिटिकल इंसिडेंट्स को जिनमें 50 to 80% ऑफ द सेकंड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैव असाइंड इट टू द सेम जॉब डायमेंशंस। उन्हीं जॉब डायमेंशंस में जिनको रखा गया है सेकंड ग्रुप ने, थर्ड ग्रुप
उन इंसिडेंट्स को हटा देता है या तो रीएलोकेट कर देता है जो उस जॉब डायमेंशन में उन्हें सूटेबल नहीं लगते हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप आया स्केल द इंसिडेंट्स। ये जो इंसिडेंट्स थे अब इनके लिए स्केल बनाया गया, 7 पॉइंट स्केल या 9 पॉइंट स्केल बनाया जाता है। और अब ये सेकेंड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब बेसिकली देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट्स। तो आप समझ रहे हैं कि कितने एक्सपर्ट लेवल पर ये काम हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है जब हम इस तरह का ये स्केल बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने क्रिटिकल इंसिडेंट की लिस्ट बनाई, दूसरे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने परफॉर्मेंस डायमेंशंस के बेस पे उन इंसिडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाला, तीसरे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने उनको दोबारा मतलब रिव्यू किया, देखा कि क्या ये सही जगह डले हैं और अगर लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो उन्हें हटाया भी जा सकता है या कि दूसरे ग्रुप में डाला जा सकता है। ये थर्ड ग्रुप ने कर दिया। अब सेकंड ग्रुप फिर से क्या कर रहा है कि स्केल दी इंसिडेंट्स की। अब ये जो परफॉर्मेंस डायमेंशन हमारे पास आ गई, इनको 7 to 9 पॉइंट स्केल में प्लेस किया ताकि हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाए। ठीक है, तो जैसे हमने 5 पॉइंट स्केल या 3 पॉइंट स्केल की बात किया, तो ऐसे 7 पॉइंट स्केल 9 पॉइंट स्केल बनाया फॉर ईच जॉब डायमेंशन। ठीक है, और इसके बेस पर फाइनल इंस्ट्रूमेंट बन गया। इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन पेपर बन गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेपर जो बनता है उसमें अगर 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली हुई है, तो ये कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की लिस्ट दी, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट जो और वाले जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाले उनकी लिस्ट दी, तीसरा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हो सकता है कि उनको रीएलोकेट करे कि और जब हम कहते हैं ना ए और बी, अटेम्प्ट ए और बी, तो जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ने बनाया, थर्ड ग्रुप हो सकता है उसको रीएलोकेट करे, रीडिजाइन करे, कुछ क्वेश्चंस वो वहां से हटा भी सकता है। और फाइनली जब आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाता है, दैट इज टर्म्ड एज अ फाइनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, और ये जो फाइनल इंस्ट्रूमेंट बना, डेवलप अ फाइनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी क्वेश्चन पेपर जो फाइनल बन गया, तो फाइनल इंस्ट्रूमेंट इज मेड एज द बिहेवियरल एंकर फॉर ईच डायमेंशन। तो हर जॉब डायमेंशन के बिहेवियरल एस्पेक्ट को जब स्टडी करते हैं तो ये फाइनल इंस्ट्रूमेंट उसे स्टडी करता है। तो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल हमारे पास आया, स्केल है, रेट कर रहे हैं 7 to 9 पॉइंट पे, और किस चीज को रेट कर रहे हैं, बिहेवियर को। ठीक है, तो डिफरेंट क्रिटिकल इंसिडेंट्स में, परफॉर्मेंस डायमेंशंस में जब हम ईच वर्कर के बिहेवियर को मेजर करते हैं, रेट करते हैं, तो वो बन जाता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ बार्स। ये जो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो हालांकि एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जब आप इतने सारे एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं ये स्केल बनाने के लिए, तो महंगा भी है। ठीक है ना, तो टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग है। लेकिन इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ क्या, काफी एडवांटेजेस हैं, उनको हम देखते हैं। अ मोर एक्यूरेट गेज सिंस इट इज डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने इस स्केल को बनाया है, तो जो हमारा इवैल्यूएशन है, जो हम परफॉर्मेंस अप्रेज करने वाले हैं, वो बहुत अच्छी होती है। एक बार सबसे पहली एडवांटेज, देन इट डिफाइंस क्लियरर स्टैंडर्ड्स एंड मेक्स इट इजी टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट टू लुक फॉर। स्टैंडर्ड्स बड़े क्लियर बन गए। आप देख रहे हैं जब इतनी बार उसकी छटनी हो गई और जांच परख हो गई, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स आए जिनके बेस पर हमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, वो बहुत क्लियर आए, क्लियर भी नहीं क्लियरर आ गए। ठीक है, ताकि इवैल्यूएट करना इजी हो जाए। ये इजी हो जाए कि हमें देखना क्या है, हमें मेजर क्या करना है। ठीक है, इट मेक्स गिविंग फीडबैक इजियर फॉर द सुपीरियर, क्योंकि सुपीरियर का काम क्या है, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाए तो फीडबैक देना, और फीडबैक देना इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत इजी थे,
क्लियर थे और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर पाए परफॉर्मेंस का, तो इट बिकम्स इजियर फॉर द सुपीरियर टू गिव फीडबैक एंड इट इज इजी टू एक्सप्लेन दी अप्रेजल रेटिंग। वो बहुत अच्छे से समझा सकता है वर्कर्स को कि उनकी जो रेटिंग है वो क्यों ऐसी है, और उसको समझाना मतलब फीडबैक देना बहुत ईजी हो जाता है। Next advantage, since critical incidents are put into 5 to 6 dimensions, ठीक है, 5 से 6 डायमेंशंस में आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, तो एक दूसरे से अलग भी होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी एक जॉब डायमेंशन में हो सकता है हम सेल्समैनशिप स्किल्स मेजर कर रहे हो, दूसरे डायमेंशन में हो सकता है हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मेजर कर रहे हो, तीसरे डायमेंशन में हो सकता है हम उसका टाइम मैनेजमेंट स्किल मेजर कर रहे हो। पर हर डायमेंशन इतनी इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से कि हर एक का जो रिजल्ट आता है वो कन्वे करना इजी होता है, वर्कर को समझाना इजी होता है, और वर्कर को ये समझ आ जाती है कि वो कहाँ लैग कर रहा है और उसे किस एरिया में मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, एंड सिंस it is a very well defined scale, therefore it is relatively consistent and reliable. इस स्केल पर हम रिलाई कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है कि कभी कुछ आंसर आएगा कभी कुछ आएगा, because this is a well designed scale, therefore it is consistent. हर बार एक तरह की मेजरमेंट हम ले पाते हैं और रिलायबल है इसीलिए। ठीक है, ये था बार्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ modern method of performance appraisal is 360 degree performance appraisal. 360 degree हमें समझ आता है क्या होता है। 360 degree is a circle, ठीक है, एंड इसमें हो क्या रहा है, वैसे तो ग्राफ से डायग्राम से मैं भी समझाती हूँ, पर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज सिस्टमैटिकली गैदरिंग डेटा फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। तो वर्कर की परफॉर्मेंस के बारे में जब हम बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं, तो दैट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ देखिए क्या है, सेंटर में एम्प्लॉय है जिसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाना है। परफॉर्मेंस को कौन अप्रेज करे, सुपीरियर, इमीडिएट बॉस। और मैंने पहले भी कहा था कि हु कैन इवेलुएट, तो हु कैन इवेलुएट में जिनके बारे में हमने बात की थी वो सारे अगर इवेलुएट कर रहे हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाता है। तो सुपीरियर, पीयर्स, कलीग्स, सप्लायर्स, वो लोग जिनके जो बाहर से कंपनी से जुड़े हैं, बाहर से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, लेकिन एम्प्लॉय हैज टू इंटरैक्ट विद देम, तो सप्लायर्स कैन आल्सो टेल अबाउट आवर परफॉर्मेंस। देन सबऑर्डिनेट्स, ये मैंने बताया था कि जूनियर्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। क्लाइंट्स, जो जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्कर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड सेल्फ अप्रेजल, ये भी मैंने बताया था कि वर्कर खुद भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता सकता है, खुद भी वो एनालाइज कर सकता है कि उसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो इसके साथ ये 360 डिग्री हो गया। जब हम इन सब से फीडबैक लें, इन सब से इवैल्यूएट कराएं और सबसे इंफॉर्मेशन आने के बाद उसको फिर हम एनालाइज करें, तो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। विद दिस वी कंप्लीट मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल।